Friends, as you know, in class 11th, set is our first topic. In the first chapter, we have to learn about sets. So, first question arises: what is sets? What is the meaning of sets? So, sets means set is a collection of well-defined objects. Now, the question arises: what is the meaning of well-defined objects? Well-defined objects means objects are defined in such a manner that everyone is able to decide that any element is a member of set or not. For example, if we take a set, just see. For example, if we take set A is equal to x, y, z, then x, y, z are well-defined objects. We are able to decide that only these three are the members of set A. If I ask 1 or 2 is a member of this set or not, then you can say that 1, 2, 3 are not the member of set. So, set is a collection of well-defined objects. Now, some few important points about set. Set is always represented by capital letters. We are using capital letters, capital A, capital B, capital C. Any capital letters is used for the symbol of sets. And to represent the members or elements of a set, we are using a small letters, like just here X, Y, Z. These are a small letters. Members of a set are also called, are known as objects or element of a set. So, the first thing is the definition of set. Set is a collection of well-defined objects, and we have to remember that set is represented by capital letters, capital English alphabet letters, and to determine the members of a set, we are using the symbols small English alphabet X, Y, Z. Now, there is one symbol belongs to. This is a symbol of belongs to. If X is a member of A, then we are using just this symbol, and if any element is not a member of this, then just we use the symbol this one and just cut. For example, just anyone asks 2 is a member of this set or not, then we say 2 is not a member of this set, so 2 does not belongs to A. We say 2 does not belongs to A. Now, on the basis of this definition of set, we are going to complete 2 questions of exercise in NCERT textbook of exercise 1.1. The first question is, which of the following are sets? Justify with the answer. We have to decide which are the sets and which are not the sets. Here I am taking some examples, only few examples, and rest of the problems you have to do at yourself. So, first one is example number 3. A team of 11 best cricket batsmen of the world. Is this a set or not? No, this is not a set. The question arises, why this is not a set? Because there is no clear-cut definition of best cricket batsmen. There is no clear-cut definition of best cricket batsmen. We can't decide who are the best one. A batsman. How can I decide who is the best? Who is the best one? So, a cricket man who has a score more than 10,000 runs is only a best cricket batsman, or a cricket batsman who have scored maximum double century in the cricket is a best cricket man, or a batsman who has performed very well in 2020 match is a best cricket batsman. So there is no clear-cut definition of best cricket batsman. So some other cricketers. So there is no exact definition of best cricket batsman. So that's why this is not a set. Now take one more example. A collection of most dangerous animals of the world. For snake catchers, snakes, as everyone knows, snake is a very dangerous animal. As we know,
snake is a very dangerous animal, but for snake catcher, snake is not a dangerous animal. For them, they are playing with the snake. So again, a collection of most dangerous animals is not a set, because it varies person to person. One more example, the collection of questions in our first chapter is a set, because in this one the number of problems is fixed. Now on this basis upon this definition, we have to solve the question number 2. Let set A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the members, and on this basis we have to insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the bracket. For example, here just see 5 is a member of this set. This 5 is a member of this set. So here we use symbol belongs to. But this 8 does not belongs to this set. So we use symbol does not belongs to. Some more examples of sets are just see n is the set of natural number. Natural number means counting number. So in this one we keep the number 1, 2, 3 like that. Similarly, Z, the set of all integers. Integers are 0, plus minus 1, plus minus 2. These are the integers, positive integers as well as negative integers. If we have to write only positive integer Z plus, then we take only 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4. This one is also known as set of natural number. So set of positive integers and set of natural number both are same. That's why I have written here n. One more example, Q is the set of rational number. Rational number means a number which is in the form of P by Q, where Q not equal to 0 and P and Q are integers. So this type of collection is known as set of rational number. A set of all collection of all rational and irrational number is also known as set of real number, which is represented by capital R. So today in this video I am just giving the definition of sets, and on this basis we have to complete exercise 1.1 and 1.1 exercise 1.1, and in this exercise question number 1 and question 2, and rest of the question in my next video. Thank you. Thanks. Set is a collection of well defined object. अब आप इस वीडियो में सीखेंगे कि सेट को लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो मेथड है, दो फॉर्म है. पहला फॉर्म का नाम है रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म. आप यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखिए रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म दोनों एक ही है. और दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म. अब ये दोनों फॉर्म क्या है, तो जरा रोस्टर फॉर्म के डिफिनेशन को देखिए. रोस्टर फॉर्म में करते क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड. जितने भी एलिमेंट्स है उनका हमको लिस्ट बनाना है. और कैसे बनाना है, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास. उनके जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करना है. एंड आर इनक्लोज विद इन ब्रेसेस. और उनको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के बीच में इनक्लोज कर देना है. तो ये डिफिनेशन है. रोस्टर फॉर्म में हम सारे के सारे जितने भी मेंबर है सेट के, उसको हम लोग कॉमा के द्वारा सेग्रीगेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में उसको इनक्लोज कर देते हैं. तो हम इस डिफिनेशन के आधार पर एक प्रॉब्लम बनाएंगे. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 5. इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको दिया गया है सेट ई. सेट ई बराबर लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री एक मैथमेटिक्स का वर्ड है और उसके सारे एलिमेंट्स को आपको एज ए सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना है. तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, देखिए इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, ब्रेसेस का यूज किए. अब इसके मेंबर्स को हम लोग कैसे सेग्रीगेट करेंगे, तो कॉमा के द्वारा सेग्रीगेट करेंगे. मेंबर्स क्या क्या है, तो आप देखते जाइए टी, तो आप टी लीजिए, फिर कॉमा दीजिए. फिर नेक्स्ट मेंबर क्या है आर, तो आर लिखिए. फिर उसके बाद नेक्स्ट मेंबर क्या है आई, तो फिर आई लिखिए. फिर आपका जी ओ, उसी प्रकार से एन. जितने भी मेंबर्स है आप यहाँ देख रहे होंगे, ओ आपका 2 बार आया है ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में, लेकिन आपको एक मेंबर को सेट में 2 बार रिपीट नहीं करना होता. यदि एक मेंबर 2 या 2 से ज्यादा बार है, उसको फिर भी एक ही बार लिखना होता है. तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं, सभी लेटर्स को हमने यहाँ पर लिख दिया है और इसको कॉमा के द्वारा सेपरेट किए हैं और इसको स्मॉल ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस में इसको बंद कर दिया है. तो ये है हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म. रोस्टर या टेबलर फॉर्म में हम लोग सारे एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में उसको बंद कर देते हैं. ये हमारा कहलाता है टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म. अब इसी सेट को, इसी फॉर्म को लिखने का एक और तरीका है. उस तरीके का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि उसके प्रॉपर्टीज को लिखते हैं
इन एलिमेंट्स में कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका डिफिनेशन आप इस तरह से कह सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। उस सेट के सारे मेंबर्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है, एक सिंगल प्रॉपर्टी होता है, जो कि उसके अलावा जो अदर एलिमेंट्स है उसमें नहीं होता है। तो आपको उस प्रॉपर्टी को लिखना होता है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेज बाय एनी एलिमेंट्स आउटसाइड द सेट। सेट के बाहर के जितने भी मेंबर्स है उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक देखिए, एग्जाम्पल 1.1 का ही हम लोग उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका 5 नंबर क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर सेट जो दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पर मेंबर लिखा हुआ 1, 4, 9 डॉट 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 लास्ट में 100 लिखा है। यहाँ मेंबर्स लिस्टेड किए गए हैं, कॉमा के द्वारा सेपरेट किए गए हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म है और टेबलर फॉर्म है। आपको इस रोस्टर या टेबलर फॉर्म को ही आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो लिखने का तरीका है ब्रेसेस, उसके बाद एक्स, हम लोग 2 पॉइंट देते इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स सच दैट, फिर से एक्स को रिपीट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू। अब आपको प्रॉपर्टी ढूंढना है कि इन सारे एलिमेंट्स में कौन सा एक सिंगल प्रॉपर्टी यहाँ पोजेस कर रहा है। आपने यहां दिखा सिंगल प्रॉपर्टी पोजेस, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। आपने यहां देखा है कि एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए, एक सिंगल प्रॉपर्टी पोजेस होना चाहिए, मतलब सिंगल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो हम लोगों को देखना, इसमें प्रॉपर्टी हम लोगों ने ढूंढ निकाला कि 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, इसी तरह से एंड सो ऑन, और आखिरी में 10 का स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जितने भी एलिमेंट्स है सब स्क्वायर फॉर्म है, और कहां से कहां तक है 1 से लिए गए हैं और लास्ट में 10 के स्क्वायर तक लिखे गए। तो इन सारे प्रॉपर्टी को एक साथ मिलाकर लिख दिए, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर से, और इस काउंटिंग नंबर्स में क्या क्या खूबी है, एन इज ए नेचुरल नंबर। कहां से कहां तक नेचुरल नंबर लेना है, तो लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू 10 ही तक लेना है, 10 के आगे हमको नहीं जाना है। इसलिए उसमें कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लेन भी करना है, एन इज ए नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 10। अब इस कॉमन प्रॉपर्टी को बोलने में या लिखने में स्टूडेंट वेरी करते हैं। कोई स्टूडेंट इसी प्रॉपर्टी को ओन लैंग्वेज में कोई दूसरे तरीके से भी लिख सकता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर एन के बारे में आप लिख सकते हो कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो 1 और 10 के बीच में एन है। एन है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा कि वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। 1 और 10 के बीच में कौन कौन सा नेचुरल नंबर आप जानते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उनके स्क्वायर्स करोगे तो आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से आप चाहो तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म का एक प्रॉब्लम देखा था ट्रिग्नोमेट्री में, कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे एलिमेंट्स को हम लोग TRIOGNMETY जो लिखा गया था, इसको यदि हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x, अब x के बाद क्या लिखेंगे, x इज द लेटर्स, x इज द लेटर्स in the word trigonometry, in the word trigonometry। आपने देखा कि इन सभी में एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये x क्या है, x ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स के लेटर है। तो आप इसको उस रूप में लिख सकते हैं कि x इज द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। पहला एम्प्टी सेट। व्हाट इज एम्प्टी सेट? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और द नल सेट और द वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जिसका कि कोई भी मेंबर हो ही नहीं, एक ऐसा सेट जिसका
कोई एलिमेंट हो ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, उस सेट को हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट का ही और भी नाम है, क्या नाम है? एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बुला सकते हैं या फिर वॉइड सेट भी कर सकते हैं। तीनों नाम एक ही सेट का है, किसका है? एम्प्टी सेट का। या तो आप एम्प्टी सेट बोलिए या वॉइड सेट बोलिए या नल सेट। अ सेट इन विच देयर इज नो ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। अब इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग इस डेफिनेशन पर हम लोग आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 1.2 टाइप्स ऑफ सेट के डेफिनेशन पर हम लोग आज पूरा का पूरा 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। 1.2 का क्वेश्चन नंबर आप 1 उठाइए, उसका प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए। 3 में दिया गया है x such that x इज अ नेचुरल नंबर, साथ में शर्त दिया है x एक नेचुरल नंबर है, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। दो बातें बोली गई हैं कि x एक नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है, और उसमें दो शर्तें लगाई गई हैं। वो प्राकृतिक संख्या क्या होना चाहिए? 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा। तो एट ए टाइम, एक समय में ये दोनों बातें एक साथ नहीं संभव है। दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है कि कोई भी एक नेचुरल नंबर 5 से वो छोटा भी हो और 7 से बड़ा। एक समय में, एक बार में केवल एक ही बात सही हो सकती है, दोनों बातें संभव नहीं है। इसलिए इस सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे नल सेट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं 5। ये सिंबल कैसे लिखे? 0 लिख के ऊपर से कट कर दिया गया। या फिर हम लोग सिंपली कर्ली ब्रैकेट को यूज करें, उसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी ये वॉइड सेट का या एम्प्टी सेट का या नल सेट का सिंबल है। ये हो गया हमारा पहला सेट, एम्प्टी सेट। अब हम लोग आते हैं दूसरे सेट के टाइप, दूसरे सेट में फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? अ सेट विच इज एम्प्टी। एक सेट वो या तो एम्प्टी हो और अदरवाइज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो क्या होने चाहिए? ध्यान देंगे, डिफिनिट होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। एक सेट जो कि एम्प्टी हो। एम्प्टी सेट को भी हम लोग फाइनाइट सेट के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि उसमें भी हम लोग श्योर रहते हैं कि उसके अंदर में कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट है नहीं। अदरवाइज अ सेट विच इज एम्प्टी और अदरवाइज कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड हो, सुनिश्चित हो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड, अगर ये क्वालिटी नहीं हो उस सेट में तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। सो एक बार फिर से देखिए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज एम्प्टी, जो कि या तो एम्प्टी हो, अदरवाइज नहीं तो कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इस परिभाषा पर हम लोग एक प्रॉब्लम बनाएंगे अपने एक्सरसाइज 1.2 का ही। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, उसका हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में क्या है? द सेट ऑफ मंथ्स। द सेट ऑफ मंथ्स, कलेक्शन ऑफ मंथ्स है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, किसी भी ईयर में जितने मंथ्स होते हैं उनका सेट है, उनका मतलब कलेक्शन है। तो ऐसा जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी ईयर में टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 मंथ्स फिक्स्ड हैं। ये 12 मंथ्स कैसे हैं? डेफिनिट हैं, निश्चित है। इस 12 से ना एक कम हो सकता है और ना एक ज्यादा हो सकता है। सो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। अब हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम लोग इनफाइनाइट सेट को देख सके। दूसरा एग्जांपल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाइए और उसका 3 का क्वेश्चन नंबर 1। द सेट ऑफ लाइन्स, लाइन्स का सेट लेना है, लाइन्स का कलेक्शन लेना है, विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। जैसा कि आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है और ये आपका एक्स डैश, ये वाई एक्सिस हो गया। और यहाँ कहा जा रहा है कि जितने भी लाइन्स हो जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो आप काउंटिंग करेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन है, तो आप गिन नहीं सकते हैं, आपकी गिनती समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनकी संख्या समाप्त नहीं होगी। इस तरह से अनगिनत लाइन है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। एक्स एक्सिस से पैरेलल कितने लाइन्स होंगे? वो डिफरेंट नहीं है, निश्चित नहीं है,
कि 1 करोड़ होगा कि 10 करोड़ होगा, तो ऐसे केस में ये जो सेट होगा, ये जो कलेक्शन होगा, वह कलेक्शन क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट का कलेक्शन कहलाएगा। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज द इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस सेट इज नॉट डेफिनिट। इसके जो मेंबर्स है वो डेफिनिट नहीं है, इसलिए इस सेट को अदरवाइज हम लोग क्या नाम दिए थे? इनफाइनाइट। इसलिए यह सेट हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। और आखिरी टॉपिक है इसका आपका इक्वल सेट। कि इक्वल सेट हम कब बोलेंगे, किसको बोलेंगे इक्वल सेट? इक्वल सेट का डिफिनेशन है टू सेट्स ए एंड बी। दो सेट आपके पास है, एक सेट का नाम है ए और दूसरे सेट का नाम है बी, आर सेट टू बी इक्वल। दोनों को इक्वल बोलेंगे। कब बोलेंगे उसके लिए शर्त क्या है? सो ध्यान दें, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, उन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हो वो क्या हो? सेम होने चाहिए, वो बहुत सेम। एक भी एलिमेंट ना कम होना चाहिए, ना ही एक एलिमेंट ज्यादा, और जो भी एलिमेंट हो वो सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। तो इक्वल सेट्स के लिए आप कंसेप्ट बना सकते हैं। अगर सेट आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो दोनों सेट के कार्डिनल नंबर आपस में क्या होंगे? इक्वल। कार्डिनल नंबर का मतलब सेट ए में जितने मेंबर्स है, सेट बी में भी उतना ही मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए में यदि आपके पास 5 मेंबर है, तो सेट बी में भी 5 मेंबर होने चाहिए। लेकिन वो 5 मेंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो दूसरा उसमें और क्वालिटी होना चाहिए कि वो जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। सेट ए में यदि 5 एलिमेंट्स ए बी सी डी ई है, तो सेट बी में भी ऑर्डर अलग हो जाए लेकिन एलिमेंट सेम ही होने चाहिए, तब वो दोनों सेट आपस में इक्वल सेट कहलाएंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और यदि ये क्वालिटी नहीं हुआ, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं हुए, तो वैसे केस में दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? अनइक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ए इक्वल टू बी लिख देते हैं, और अनइक्वल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो ए डज नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए उसका। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? इसका कार्डिनल नंबर कितना है सेट ए का? तो कार्डिनल नंबर है 1 2 3 4। इसके मेंबर्स इसमें टोटल 4 है। उसी प्रकार से सेट बी देखिए, तो 1 2 3 4, इसके भी मेंबर्स क्या है? बी है। तो दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम है, 4 सेट ए का भी है और 4 सेट बी का भी है। और साथ साथ क्या है? दोनों के एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल है, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। दोनों में एलिमेंट्स में ऑर्डर अलग अलग लिखा गया है लेकिन एलिमेंट्स सेम है। जैसे इसमें ए है तो यहाँ भी देखिए ए है, यहाँ लास्ट में है, यहाँ बी सेकंड में है, यहाँ पर बी आपको सेकंड लास्ट लिखा गया है, सी इधर से थर्ड में है और सी यहाँ पर स्टार्टिंग से सेकंड में लिखा गया है, और डी देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में है और इसमें डी आपका फर्स्ट में लिखा गया है। तो दोनों में जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स भी आपस में क्या है? सेम है। इसलिए ये दोनों सेट्स क्या हो गए? इक्वल सेट्स हो गए। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। सेट ए क्या है? सेट ए में वो सारे लेटर लिए गए हैं जो कि फॉलो वर्ड में आते हैं। और दूसरा सेट है आपके पास बी। बी क्या है? बी इज अ कलेक्शन ऑफ वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड उल्फ। उल्फ वर्ड जो है उसमें जो भी लेटर्स हैं वो सारे का कलेक्शन है आपका बी। अब दोनों में देखिए ए में क्या क्या लेटर आएंगे फॉलो में? फॉलो में आपका आएगा एफ, उसके बाद आपका आएगा ओ, तो आप ओ लिख दिए, फिर क्या आएगा एल लिख दिया आपने, फिर आएगा आपका डब्ल्यू। कोई भी लेटर कितने बार भी रिपीट किया जाए लेकिन सेट में हम लोग सिंगल बार ही लिखते हैं, बार बार रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने बार भी रिपीट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से भी काउंट होते हैं। उसी प्रकार से सेट बी में आ जाए, इसमें जो जो लेटर्स यूज किए गए हैं, कौन कौन से लेटर यूज किए गए हैं? डब्ल्यू, तो देखिए आपका डब्ल्यू है, उसके बाद ओ, फिर आपका ओ है, फिर एल, फिर आपका एल है और फिर आखिरी में एफ। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेट में जो लेटर्स है वो क्या है? सेम है। लेकिन दोनों को जब सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा गया है तो दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं। लेकिन जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं या टेबलर फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों के एलिमेंट्स क्या हम पाते हैं कि दोनों के एलिमेंट्स सेम है, आइडेंटिकल है। इसलिए दोनों सेट क्या हो गया? हमारा इक्वल सेट हो गए। और हर एक इनफाइनाइट सेट को, जो आपने यहां पर देखा था इनफाइनाइट सेट, हर एक इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखना
पॉसिबल नहीं है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है, सब सेट ऑफ रियल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, टेबल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके बच्चों, तो इस बेसिक कंसेप्ट के आधार पर आप एक्सरसाइज 1.2 के सारे प्रॉब्लम्स को आप बना सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।